very warm welcome to all of you this afternoon. HSPC, which is an affiliate body of NPC, every year we have Productivity Week during February, and like every year, this year, today is the day one, so it is an inaugural session for that. Every year we have a theme. This year, like last year, the theme was artificial intelligence. This year it is protecting the intellectual property. For intellectual properties, we have the guest speakers today, and before we begin on that, let me welcome amongst us Dr. Rashmi Chawla. Please welcome. Rashmi will be speaking more on the technical sides. She is currently pursuing her postdoctoral study in Italy. Joined later during the session on the online mode by Professor Dr. Sudeep Chakrabarti. We are trying to connect to him. He is a scientist working in biotechnology, transport phenomena and biotechnology department of University of Calabria, Italy, and he has specialist in membranes and such developments, and has large number of patent and registrations to his credit. On the legal side, we have Ms. Deepika, who would be really giving us the real ground level information as to how to have the rights, how to register, and how to enforce them in case of such a situation arises. And very quickly I'll share the way conventional businesses when we started of our generation. It was very simple. We considered a product, started manufacturing it, giving it to customer, getting some value out of it, and whatever was left out after paying for taxes and everything, that was again brought back to the business. Sometimes it would leave us with some money to spend on ourselves. Otherwise the life was going on until the time we never knew anything about intellectual property. World over. Now with the global world, if you look at the way US has developed, it's primarily because of intellectual properties. Manufacturing capital is only a very small percentage of iPhone, not more than 7 to 10%. Rest of the money either goes to design by IP or to maybe the distribution channels. So what we capture in manufacturing, which we are trying to increase our GDP by whatever standard, will still be way behind unless until we develop ourselves in this organized and knowledge economy. So to begin with, I will request Dr. Rashmi Chawla. I will speak for you. Yeah. National Productivity Week from 12th to 18th. I congratulations to Government of India and State Government and State Productivity Councils जो कि इस प्रोग्राम को 12 से 18 के बीच में कर रही हैं. और जैसा कि संजय जी जो कि इस वीक को मनाने के चेयरमैन हैं और को चेयरमैन आशु जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है. प्लीज ज्वाइन कि ये एक हफ्ते का हमारा प्रोग्राम है और आज के जो दो स्पीकर हैं रश्मि जी और दीपिका जी, ये अपने अपने टॉपिक के ऊपर आपके साथ 15-20 मिनट के बीच में बात करेंगे. हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम रहेगा और वो जितने प्रेस वाले 4-5 लोग बैठे हैं मैंने उनको व्हाट्सएप पे डाल दिया है कि कल हमारा क्या प्रोग्राम होगा एंड सो ऑन टिल 18th. Tomorrow we will have meet press and we will release the safety posters. Next is our सेफ्टी के ऊपर हमने फायर सेफ्टी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा. उसके नेक्स्ट डे वी विल विजिट 2 इंडस्ट्रीज जिसमें हम स्टार्टअप्स को कोशिश करेंगे कि वो अपने बिजनेस में आए और जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर बात करें, उसका ध्यान रखें. और मंडे को ITI के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात करके उनको तैयार करेंगे कि आपको स्वयं रोजगार के लिए किस तरह के आपको पैरामीटर चाहिए, क्योंकि मेरा बेस उस इंस्टीट्यूट से है और एक कंपटीशन भी कभी हुआ करता था कि कौन प्रिंसिपल कितने ITI के पास आउट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ले जाता है. एंड इन दैट ओल्ड डेज आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन हरियाणा, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा लोग मोटिवेट किए थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. 1-2 एग्जाम्पल यहाँ हमारे बीच में भी बैठे हैं.
और लास्ट डे होगा हमारा फाइनल फंक्शन, वी विल हैव इन सम गुड होटल। हम भी हैं, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट के हैं चाहे वो एम्प्लॉई हैं, उसके ऊपर जो है ना अपने पेपर पे विचार दे, उसके ऊपर अवार्ड भी है और उसका हम जो है ना मतलब कि नेशनल लेवल पे उनकी रिकग्निशन भी मिलेगी। तो ज़्यादा समय न देते हुए मैं दोनों स्पीकर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और जो हमारे मेहमान आज के डेट में आए हैं उनका हार्दिक स्वागत। बीच में मैं 20 मिनट के लिए गायब रहूंगा। वीरबान Good morning everyone. I am Rashmi Chawla. I work as Associate Professor in JC Bose University, YMC, Faridabad. And I have been there from last 22 years. Teaching ही profession रहा है, and I have been through lot many patents, innovations and all. To begin with, I'll be taking only 15 minutes. उसके बाद हम सुदीप सर से continue करेंगे, तो सर आपके हाथ जाना। हाँ। Minutes में let me first clear something. We are very senior people sitting here, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि पेटेंट हमें समझ में आता है कि what is patent, ठीक है। अब पेटेंट प्रॉपर्टी है, ये भी हमें समझ में आता है, बट ये प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती, तो हम इसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट। अब डिस्कवरी एंड पेटेंट में देयर इज अ वेरी की डिफरेंस। वन विच इज डिस्कवर्ड कैन नॉट बी पेटेंट। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, समवन डिस्कवर्ड दिस प्लेस, तो क्या वो उसे पेटेंट कर लेगा? आप समझिए क्वेश्चन मेरा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने कोई चीज डिस्कवर की जो किसी को नहीं पता थी, ठीक है। सपोज हमने यहाँ की खुदाई की और यहाँ से हमें कुछ हीरे की वो मिली, तो आपने कहा मैंने ये डिस्कवर किया, ये तो किसी को नहीं पता था यहाँ मिलेगा, तो दिस इज समथिंग न्यू, बट कैन बी पेटेंटेड? नो, वी कैन नॉट, ठीक है। समथिंग जिसने बल्ब डिस्कवर किया वो पेटेंट किया कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। सो नॉट डिस्कवरी इटसेल्फ हैज टू डेफिनेशन, वन विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट नो वन कुड सी इट दैट पर्टिकुलर टाइम, लोगों को नहीं पता चला, तो हम उस प्रॉपर्टी को पेटेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वेंशन को कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो वी केम विद अ न्यू वर्ड, इनोवेशन, इन्वेंट किया, तो इन्वेंशन डिस्कवरी का बेटर वर्जन था जिसे हम पेटेंट कर सकते हैं। अब सडनली मेरे दिमाग में आया कि ये जो व्हील है राउंड है, ठीक है, मैं इसे स्क्वायर शेप का बना देती हूँ और पेटेंट कर देती हूँ। गाड़ी कैसे ना कैसे तो चलेगी, बट कैन आई पेटेंट इट? ये तो मेरा आइडिया था, व्हील इन स्क्वायर शेप। हम कैसे पेटेंट कर सकते हैं? इट्स अ न्यू आइडिया। जो भी डेवलप किया गया है वो पेटेंट हो सकता है। नहीं सर, अब उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यूटिलिटी किस कॉन्सेप्ट में? तो देयर आर सम पैरामीटर्स व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड। अब घर में हूँ, आई एम अ किचन पर्सन, मतलब आई कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरी मच इनटू किचन। तो देयर आर सो मेनी मशीन्स जिससे आप जलेबी बना सकते हो एंड ऑल, उसका नोजल का टिप कितना होना चाहिए एंड ऑल। देयर आर पीपल हु आर पेटेंटिंग दिस डिजाइंस आल्सो, सो दैट कैन बी पेटेंट बिकॉज उसने वो काम इजी किया। तो देयर आर सम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आल्सो व्हेन वी गेट रजिस्टर्ड इन अ पेटेंट। हमने कुछ इन्वेंट किया, बट अगर वो कंपैरेबल है उसी टाइप के किसी इन्वेंशन से, तो इट हैज टू बी बेटर देन द प्रीवियस इन्वेंशन। जैसे व्हील, गाड़ी में व्हील लगता है, तो व्हील इज वन थिंग जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था हमारी हिस्ट्री में, व्हील रेवोल्यूशन था, दैट कुड बी पेटेंट। अब उसके बाद व्हील तो ऑलरेडी था, बट आपने अगर उसका स्क्वायर वर्जन निकाला, तो जो ऑलरेडी व्हील पेटेंट था, अगर उसके किसी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से आपका बेटर आता है सर, तो आप पेटेंट कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। अब हम सबको लगता है कि हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर बनाया होगा, यू पीपल बीइंग इन इंडस्ट्री, जिससे आप पेटेंट कर सकते थे। आइडिया था पर टाइम से नहीं हो पाया। सी आइडिया तो बहुत आते हैं, हम सबको आइडियाज आते हैं, बट उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आना, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स हार्ड वर्क, इट टेक्स मनी ऑल्सो। सो गवर्नमेंट हैज लॉट मेनी स्कीम्स जहां आप अपना आइडिया भी पेटेंट करवा सकते हो। सो दैट इज वेयर IPR नॉलेज रियली काउंट्स, कि अगर मेरे पास कोई आइडिया है, मेरे पास सिर्फ आइडिया है, तो मैं उसे पेटेंट करवा सकता हूँ। जब उसे इम्प्लीमेंट हो तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पेटेंट हैं।
आप उसे उस तरीके से कर सकते हैं। हम सब इनडायरेक्टली विदाउट अननोइंगली इज अ प्रॉपर वर्ड अपने डे टू डे रूटीन्स में चीट करते ही हैं। हम सब ने पायरेटेड मूवीज देखी हैं, पायरेटेड सीरीज एंड ऑल, ये सब पेटेंट के क्लॉज के अगेंस्ट है। यू कैन नॉट वॉच देम। ये आप कॉपीराइट लिखा रहता है हर मूवी में, कॉपीराइट है, बट वो पायरेटेड बनाते हैं, हम पायरेटेड देखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में किसी के पेटेंट को हैम्पर कर रहे हैं। जैसे इनफैक्ट हम सब ने अपनी यूनिवर्सिटी में बुक्स की फोटोकॉपी करवाई है। Intellectual property for startups. Why it is specifically for startups only? It can be anyone. It can be actually anyone. Title is kept startup. सर ये स्टार्टअप इज अ बज़वर्ड, चेरी ऑन द केक। हर जगह यूज हो रहा है ना, तो यूज हो ही रहा है। ऐसा है बिल्कुल जी, वो क्या है ना, उन्होंने बोला जो पुराने हैं ये तो आप जो करना था कर गए। नहीं सर, आप अपनी इंडस्ट्री में भी कुछ एक सेगमेंट नया खोल रहे हैं, तो इट्स अ स्टार्टअप ओनली। No, that is not. See, startup is a specific definition. It And is, the it movie is, it not a is. startup. Government of state startup category of industries, which we don't get benefits with startup. नहीं सर, अगेन आपकी इंडस्ट्री सपोज जैसे जिन इंडस्ट्रीज को मैं जानती हूँ, सपोज आपने कुछ डाई बनाया हुआ है कुछ शेप का, एंड आप वो किसी कार कंपनी को देते आ रहे हैं इतने सालों से, सो यू हैव अ इंडस्ट्री। अभी लेटेस्ट आई गिव यू द लिंक्स। Definitely not, because of we are in day-to-day objecting to government of Haryana, government of Delhi on the same but sector. these are specifically to the field, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन में गवर्नमेंट ने दिया। अब Property rights are the rights given to the person over the creation of the minds. प्रॉपर्टी से हमें लगता है कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक और तरह की प्रॉपर्टी होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जो हम अपने माइंड से क्रिएट करते हैं, जिसपे हमें एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कुछ ईयर्स तक उसे यूज करने का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलोइंग रीजंस की वजह से। ये बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाता है, मार्केटिंग प्रोसेस को ईज करता है, सेफगार्डिंग यूनिक आइडियाज, रेजिंग फंड, enhancing export opportunities. So types of IPR. First है trademark. Trademark means a mark capable of being represented graphically or which is capable of distinguish the goods and services of one person from that of another, may include of shape of goods, packaging and combination of color. कोई भी मार्क, जैसे कि अमूल हो गया, अमूल से हम वो उस ब्रांड की तरफ जाएंगे। अभी मेनली एक केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, कोई बंदा अमूल नाम से दवाई बना रहा था, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि अमूल वेल नोन मार्क है और लोग इसको उसी ब्रांड के साथ एसोसिएट करेंगे, तो आप किसी का मार्क ऐसे नहीं यूज कर सकते। कोई भी लोगो देख के कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख के, इवन कलर्स का भी ट्रेडमार्क हो सकता है। जैसे कि वैनिश है, वैनिश का जो पैकेजिंग है, जो उसकी जो कलर्स है, वो उसका उन कलर्स को देख के हम सीधा लगा सकते हैं कि वो वैनिश के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जो ट्रेडमार्क है वो हमें अगर हम पासिंग ऑफ, अगर कोई इंसान है जिसने अपना ट्रेडमार्क नहीं भी रजिस्टर कराया, फिर भी उसको राइट मिलती है। अगर आपने अपना ट्रेडमार्क नहीं कराया बट आप ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आप उसको रोक सकते हैं। कोई भी आपका ब्रांड नेम अगर यूज कर रहा है, कोई भी आपके नाम से अगर गुड्स बना रहा है, काउंटरफीट गुड्स बना रहा है, तो आप उसे रोक सकते हैं। जो ट्रेडमार्क है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सेलिब्रेशन के चेयरमैन हमारे संजय बदाम जी हैं, उनको चेयरमैन आशीर्वाद जी दूसरे पीपल इन्वॉल्व। ये कंसेप्ट पेपर वाला जो मामला है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। आप उसको अपने स्टाफ में शेयर करिए, अपने बच्चों में शेयर करिए, जो कॉलेज में कोई बच्चे हैं उनको, सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो उनमें शेयर करिए। वो कंसेप्ट पेपर जो है हमारे पास बाई मंडे आना चाहिए, क्योंकि उसकी इवेल्युएशन करने के बाद कोई फंक्शन जिसमें हम उनको अवार्ड देंगे, और अवार्ड में क्या उसकी नेशनल लेवल पे भी वो पेपर प्रिंट हो सकता है जिसका बढ़िया चुना जाएगा।
दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत असुविधा लग रही है कि जैसे आप कुर्सी पे बैठ के कुछ खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। तो मैं एक तालियों के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा विक्टोरिया फाउंडेशन का, जो हमारा नया हॉल जो है 3 स्टार स्टैंडर्ड का 2 महीने में तैयार हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। और उसमें सारे जो हमने ये काम रखे हैं वो सब ऑलरेडी माउंटेड होंगे। और अगला साल में तो जो भी नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक आएगा उससे पहले जितने हम प्रोग्राम करेंगे हम नए हॉल में करेंगे। तो एक बार मैं विक्टोरिया फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं दिए हुए एंड मिट्टा ब्रदर जो भंगा जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई रिक्वेस्ट नारायण जी टू से फ्यू वर्ड। नहीं वो तो This is something you have to do. Thank you very much for यहाँ पर तो इसलिए बताने साथ बुलाया। ये तो मैंने कहा कि ये टीम करती रहती है।